Great, great. Cool. So this is our first class for weekend part. Can you see my screen, everyone? Yes, Rishabh. Amar, I guess you've been with weekdays batch as well, right? Previously? Yeah, initially I asked Anwar to enroll me into the weekend, but he asked me to join weekdays. But due to some problems, I was not able to catch up with weekdays batch, and I decided to go with weekend only. Anwar, the Mhm. mysterious person. Yeah, Finally, he's not with us just because a lot of blunders he did. that's a separate discussion, I guess. We have to do Yeah, it that's a later. separate discussion. Yeah. Promising something else that we were not delivering. A lot Yes. of things. But I saw newly released voucher, and it was like, I must say that it is like amazing. The helm and everything, whatever the technology you have put in, fantastic. Where? So yesterday, Afshin sent me that Nibli browser, which Okay. has like AI, GitOps, AI, FinOps, DevSecOps, right? Right, Is it right, going to be a right. newly added sections for future? Even though I will be adding more things like Kyverno and OPA and in Kubernetes, how we can Cilium and Mhm. a lot of things that in India, you if you just say in interviews, they will be like, "Arey, Mhm. are these there in India? They being used in India or not?" Like that things as Yeah, well. because these are the technologies. Because I have already joined a lot of like first day session of a lot of international DevOps courses, and the Helm chart and all these kind of stuff are only being taught in US, UK market only. Indians are Correct, not using correct. it right now. Yeah. Right. Because see, if I were telling about that, how we can take backups of Kubernetes backups. We Mm. use Valero and these things. But actually in Yes. India में इतने level पे they don't go for that part. वो Yeah. कहते हैं कि AWS है, we will be taking backup from there. अरे तो it has a different thing ना everything. Now cube cost, Yes. how we can decrease the cost of Kubernetes, they don't know, right? Financial Yeah. part of it. But nowadays, I think some of the things are getting shipped to this OpenShift also, right? Redshift, Op OpenShift. So what happen usually? Kubernetes is very open source. Okay, it is being Yeah. installed everywhere. But if I just take about OpenShift, it is just built for Red Hat Linux. Red Hat, yes, exactly. Okay, so OpenShift is ठीक है. It's not like that bad, but Kubernetes has more things as compared to OpenShift. Just Yeah. because अगर आपकी company has some kind of contract with Red Hat, and they are saying that okay, we have Red Hat Linux in our enterprise services or everything, so we will be going with OpenShift in that way, part of it, because Red Hat provides support for OpenShift. But let's suppose if you Yes. want to go for Kubernetes part, then there is no support. Yeah, that's completely OpenShift, and you have to manage it by yourself. Correct, correct, Yeah. like that one. Cool, Okay, so everyone. let's And start with the session. yeah, Yeah. yeah, I also have added more things, let's say Istio as well. And what else I was adding? Um, a lot of things are there basically in Kubernetes part. So don't worry about Rishabh, just a everything. small request. Mhm. Do we also get the notes? Because yeah, even though we are like attending the sessions and everything, it will be Mhm. better if we can get the screenshots of whatever theoretical we are writing and whatever we are doing. If you have the additional notes, because I'm a kind of person who like to read more kind of books and everything, and I get in that, like if I read, I get it very nicely in my mind. So is it possible if we can get some notes also additionally? See, what I will do, I will be able to provide a document, or you can go to my GitHub. Okay, I already have uploaded Okay. everything on my GitHub. Mm-hmm. If you will just open my repository here, uh, So from day one, all the documents will be there, right? Kind of stuff.
Kind of. Let me just see. Yeah, can you see here? Yeah, Not Jenkins, not Kubernetes. this one. Not this one. अरे कहीं तो था somewhere about. Hey, hi Rishabh. Hi, how are you? Hello. Hello, can you hear me? Hello. Hello, am I audible? Am I audible? Yeah, you are audible, buddy. Can Rishabh? you hear me? Yeah, can you hear me? Hello, I can hear you. See, can you see, Amar? Yes. I So I already think we have. are going to start with the networking stuff, right? Initially, the initial classes Correct. will be in networking, subnets, and everything. Right. See here, OIDC. What is Okay. OpenID Connect? What is OAuth protocol? Everything. Hey, hello Rishabh. Hi, Rahul, can you hear me? Right. Yeah. Sorry, I interrupt you. Actually, No. we joined today first day, so Mm-hmm. we don't know about the means. Is the first batch or is the completed on many batches? See, did I have completed many batches or this is the like old batch? What do you want to say? कि ये पुराना बैच चल रहा आ रहा है या फिर it is a first class और क्या तो मैंने ये बहुत सारे बैच का बैचेस पढ़ा है? पहला पहला मतलब बैच का पहला लेक्चर है या मतलब ये बैच के बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं नहीं, आज क्योंकि पहली क्लास है। पहली क्लास है थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए ना जो मतलब हम थोड़ा सा हाँ, मतलब बिल्कुल बिकॉज क्या था, अमर इज लाइक प्रीवियस स्टूडेंट, ठीक है, एंड अमर वांटेड टू नो कि ऋषभ यू हैव एडेड लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टूल्स जो बाहर पढ़ा रहे हैं इंडिया के बाहर, यहाँ हाँ पे हाँ इंडिया में हाँ नहीं हाँ पढ़ा रहे। तो दैट वाज आई वाज ओके सेइंग कि अभी तो कुछ कराया ही नहीं है मैंने। अभी तो मेरे माइंड में बहुत चीजें पढ़ाना है, ट्रैफिक भी है। हाँ हाँ ट्रैफिक हाँ यहाँ पे लोग सिर्फ कराते हैं इनग्रेस के ऊपर करा के इंजीनियरिंग कंट्रोलर, बट दे डोंट टीच ट्रैफिक, हाउ टू हैंडल ट्रैफिक एज वेल। तो ओके बहुत चीजें हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ नो मतलब हम लोग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मिल जाता कि क्या है कैसे बिल्कुल। मतलब क्या क्या मेरा पढ़ाने इंट्रोडक्शन वाले हैं चाहिए? थोड़ा नहीं डू नहीं यू आपका नीड माई इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन? वो ये वो तो लिंक्डइन पे मिल गया आपका इंट्रोडक्शन नो इश्यूज का मिल गया। हाँ जी। वो मुझे टॉपिक के रिलेटेड मतलब ऐसा चाहिए था कि कौन से मतलब क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कंप्लीट होंगे और समझ रहे हो ना ओके, नहीं मैं समझ नहीं रहा। सी, पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद नेटवर्किंग, ओके ठीक है। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद लिनक्स, with AWS, जिसमें I will be covering 3 certifications: Solution Architect Associate, SysOps Associate, and आपका DevOps Professional. Any doubt यहाँ तक? नो 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 After that, we will be moving ahead to our Git, then Docker, like DCA level का। DCA बेसिकली क्या था, डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट प्ले एग्जाम आता था, लाइक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉकर, बट वो बंद हो गया आखिर बात। नेक्स्ट क्यूबरनेटिस, यहाँ पे तहलका होने वाला है। In this era, basically in this area, you will be able to compete with many staff level DevOps engineer, or you can say SREs, or your uh, infrastructure, infra engineers. In Kubernetes, I will be covering a lot of things, including Prometheus, Grafana, Loki, एंड हेल्म तो हो गई होगा। देन आपका ट्रैफिक, आपका ओपीए, देन व्हाट एल्स, बहुत चीज़ें हैं इसमें यार, मतलब
We will be going with that part, don't worry. Argo CD भी है, then क्या कहता है, क्यूब कोस्ट, a lot of things. Then आपका GitHub Actions, then Terraform, then Ansible, then आपका Jenkins. Then आपके 5 प्रोजेक्ट्स मैं आपको खुद करवाऊंगा एंड 5 प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगा करने के लिए. एंड these projects are not like kind of YouTube वाले project. These are really kind of creating our own application with database and deploying using modern tools, or you can say basically microservices. Clear everyone or not? Yes, Rishabh. And as of it is a weekend batch, तो ये लंबा ज़्यादा है. It takes time. Like how many months? देखो, if I take about 2 hours a week, नहीं, 2 hours per day के यानी कितना हुआ ये, 4 hours per week हो गया ना, सैटरडे एंड संडे. सो एक महीने में तो आपका सिर्फ और सिर्फ नहीं, एक महीने में आपका होगा खत्म लिनक्स. 2 महीने में या 3 महीने में आपका 2 से 3 months will be taking AWS, and Git and Docker will take 1 month. Kubernetes will take 1 month, and take these as 1 month and 1 month. 4, 4 and 6, 7 एक मान के चलो आप. 6, 7, 8 months. 6 to 8 months. 6 भी तब जब आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज एक बार में ही समझ में आ जाए या 2 बार में. And 8 months तब कि you need some more explanation, slow like that one. Clear? Yes, Rishabh. Okay. Before everything, guys, let's have a normal introduction. ठीक है? तो people please introduce yourself. मेरे बारे में है, आई एम ऋषभ, एंड क्या ही बताऊं मैं. आई बीन इनटू डेवऑप्स, क्लाउड, बैकएंड. 2022 तक था मैं, फ्रॉम 2020. एंड आफ्टर दैट आई वेंट विद, यू कैन से, डेटा इंजीनियरिंग. काफी कम टाइम लिया डेटा इंजीनियरिंग के लिए, और उसके बाद आई स्विच टू मशीन लर्निंग एंड एमएल ऑप्स, एलएलएम वगैरह वगैरह. Cool. And this will be my future perspective as well for my PhD वगैरह वगैरह वगैरह. Now, till now, I have been like providing trainings to students globally, specifically USA, UK, Canada, Australia, Dubai, and till now I have trained more than 15,000 students plus people working in Google, Meta, Netflix, Oracle, Cisco, वगैरह 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 कंपनीज. कूल एवरीवन, कोई डाउट मेरे लिए? No. No, Rishabh.
परफेक्ट। सो गाइस, कौन कौन है जो रेडी है जर्नी के लिए? सो फर्स्ट वी हैव राहुल। राहुल, कैन यू हियर मी? अच्छा, राहुल का तो हो गया। Yes, yes, yes. राहुल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बडी। Yeah. I'm Rahul. I'm living in Mumbai, and I'm working professional last 13 years. Uh, Cloud platform ओके for me new, and I'm currently working on Wipro. ओके, 13 years plus experience, right? Yeah, in Wintel. तो भाई, विद डेवऑप्स, क्लाउड एंड एसआरई, बहुत अच्छा स्कोप है अच्छे लेवल पे जाने का, बहुत अच्छे लेवल पे। Yes, yes. नेक्स्ट, अमर, प्लीज अगेन। Hey, hi everyone. Yeah. Hey, hi everyone. I am Amar. So I have been working with Vodafone since 4 years, and currently I'm working as an incident manager. And yeah, that is all about me. कूल, परफेक्ट। एंड सिद्धि, कैन यू हियर मी? Yes, am I audible? या सिद्धि, यू आर ऑडिबल। Hello, my name is Siddhi Gade. Basically, I'm from Pune and I have done MBA in marketing and currently I'm working in a digital marketing sector. But I want to switch in IT sector. That is why I joined this class. ओके, नो वरीज, वेलकम। Thank you. एंड वन प्लस सीपी, कैन यू हियर मी? हु इज वन प्लस सीपी? ओके, योगेश, कैन यू हियर मी? योगेश, am I audible? Okay, no worries. So, guys, we will be starting again with basics. I expect किसी को कुछ आता नहीं होगा regarding about computer everything. Clear everyone or not? Expect करूं ना करूं? Tell me everyone कि आपको कुछ आता है। Let's start from zero, Rishabh. Zero? Everyone? ठीक है। तो guys, everyone knows we have computer. Clear everyone? ठीक है। वी हैव अवर Yeah. कंप्यूटर गाइस। कूल। कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं। अच्छा, विच टाइप ऑफ मीडियम यू वांट टू हैव इट? इंग्लिश, फुल्ली प्रोफेशनल इंग्लिश, और मिक्स ऑफ इट, हिंदी और इंग्लिश, या प्योर प्योर हिंदी? व्हाट डू यू वांट गाइस? Mix of Hindi and English. इंग्लिश एवरीवन। If you want to have professional one as well, we can also go for professional as one if you want. Tell me guys, क्या चाहते हो? What do you want from me? See, Mix Indian English. mix Hindi English चलेगा सबको, everyone? चलो। Yes. And guys, there is one rule in my class. अमर, पता है रूल? क्या रूल है? It's been a long since I joined this classes, so I think I forgot it. वन रूल इज इंटरेक्टिवनेस। अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जरूरत नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। यू कैन जैसे, ऋषभ मुझे नहीं समझ में आया, ऋषभ मुझे नहीं समझ में आ रहा, या फिर ऋषभ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन? ठीक है, तो मैं उस समय रुक जाऊंगा। आधे घंटे बाद आप बोलो, मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने क्या पढ़ाया है, एंड यू जस्ट लाइक ब्लैंक्ड, तो वो नहीं चलेगा। नहीं आ रहा उसमें मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, ऋषभ मुझे समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? आई विल रिपीट। सेकेंड थिंग हियर, कि भाई आपको बोलना है। मैं बार बार पूछूंगा आपसे, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, बिकॉज वो मेरी हैबिट बन चुकी है। नो अदर पीपल, नो अदर ट्रेनर्स आस्क कि आया समझ में नहीं आया, आया समझ में नहीं आया, बट इवेंचुअली यू विल नोटिस कि मैं हर बारी पे ही पूछूंगा आपसे, आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो यू हैव टू से यस और नो, आया नहीं आया। क्लियर एवरीवन और नॉट? देखो, Yes, Rishabh. Yes. क्लियर? चलो। एंड आफ्टर दिस थिंग गाइस, probably एक दो वीक्स के बाद आई एम थिंकिंग टू चेंज द टाइमिंग्स फ्रॉम 8:30 to 10:30,
चलेगा? अभी अपन सिर्फ एक डेढ़ घंटे की क्लास रखेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेश बैच, न्यू स्टूडेंट्स विल बी कमिंग अगेन अगेन अगेन। तो एक दो बैच में जब विल बी कैचिंग अप द ट्रैक, तो हम इजीली इसको शिफ्ट कर देंगे 8:30 to 10:30। चलेगा एवरीवन? Yes, sure. Yes. बिकॉज 9 विल बी क्वाइट लेट, है ना? तो इसलिए 8:30 to 10:30। कूल। बट अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 weeks वी विल बी हैविंग 1.5 hour क्लास, ताकि आपको भी इजी रहे 10:30 तक। ओके, कंप्यूटर गाइज एवरीवन। कंप्यूटर में वी हैव थ्री थिंग्स: सीपीयू, रैम, स्टोरेज। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या करता है ये? Hello, एनीवन? यस। sir. Sorry to disturb you. Actually, I just joined now only. हम्म। So आपने कुछ अभी तक करवाया है क्या सर? बेटा मैंने अभी सिर्फ शुरुआत किया है कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। अच्छा ऐसा। ओके ओके। एक्चुअली मुझे लिंक सीपीयू। अभी जस्ट सेंड की सचिन सर ने। तो तो बेटा मैं सबसे माफी मांगता हूँ कि यहाँ पे सब चीजें स्लो चलती हैं। तो हम अच्छा थोड़े से, ऐसा ऐसा। हाँ, न्यू हायरिंग कर रहे हैं ताकि चीजें और ओके फास्ट होए। पीपल ओके ओके। थोड़ा सा या अभी राइट। माइक्रो मैनेजमेंट इज वेरी वेरी तो बैड सर हेयर। क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना सर, हाँ डेवऑप्स के? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वीकेंड बाद से स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट। अच्छा, वीकेंड बैचेस रहेंगे सर, सैटरडे संडे ओनली? हाँ जी। अगर आपको वीकडे चाहिए तो वीकडे भी है, वीकडे चल रहा है लेकिन अभी एक्चुअली मुझे आफ्टर लाइक वीकडे ही चाहिए सर। हाँ मैं जी। 1 मंथ से वेट कर रहा हूँ सर एक्चुअली। वन मंथ पहले आपको, यस आप थे नहीं वीकडे के अंदर? सर। एक्चुअली क्या बोलूं मैं आपको, अभी सचिन सर के साथ मैंने कब से बोला हुआ है उनको, तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने अभी मुझे लिंक सेंड की है, लेकिन मुझे वीकडे का चाहिए था। वो बोल रहे थे कि 7 तारीख से न्यू बैच चालू होने वाली है। तो मतलब मुझे लगा कि वो वीकडे ही होंगे, बट आप बोल रहे अम, वीकेंड पे। एक्चुअली मुझे योगेश रेगुलर जी, चाहिए। हाँ देखो, हाँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया बात को। अभी राइट। वीकडे की ना, वीकडे का बैच चल रहा है अभी, ठीक है? अच्छा ओके ओके। एंड वो फैब एंड तक खत्म हो जाएगा। अच्छा तब ऐसा। तक आप ये वाला क्लास बैच कंटिन्यू रखो। उसके बाद मैं देखता हूँ और कुछ कि और जल्दी कोई बैच स्टार्ट हो पाए, वीकडे वाला बैच ये भी। क्या, बराबर वीकडे का सर कितने ड्यूरेशन, मतलब कितने आवर्स का रहता है? विग वीकडे वाला यार देखो क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया था अक्टूबर के अंदर, तो मैं फैब में ख़त्म कर दूंगा उसको। तो यू कैन काउंट की प्रॉपर 5 मंथ्स में हो गया। वीकेंड वाला ले हाँ लेता है नहीं। 6 to 8 months। बस फर्क यही आता है। ओके। बराबर। नहीं मतलब क्लास कितने आवर्स के लिए रहती है वो पूछ रहा हूँ। 1 आवर, 1 आवर की रहती है। 1 आवर की। बराबर। और ये अ, हाँ जी, ये वाली रहेगी ये आपकी टू। 2 आवर की। 2 आवर की। ओके ओके ओके। उसमें उसमें बस एक चीज होता है कि जैसे कि दिसंबर से ना, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही मेरे साथ बात कर पाते हैं, बस। अच्छा बराबर। और यू कैन से कि 30 मिनट ही मुझे झेल सकते हैं वो। 30 मिनट के बाद वो बराबर। बेचारे थोड़े से शेमड़े हो जाते हैं, समझ रहे हो? ऐसा है। 30 मिनट बाद वो खत्म हो जाते हैं अंदर से, उनको इच्छा खत्म हो जाती है पढ़ने की उनकी। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा क्योंकि ये 1 आवर के बैच में बोल रहे सर? हाँ, 1 आवर के बैच में। क्योंकि सही सही। टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप समझ जाओगे कि भाई कुछ तो है, लोचा तो है। अच्छा बराबर बराबर। सर तभी डेवऑप्स में कम। आप मतलब क्या क्या कवर हाँ करने जी। वाले हो, थोड़ा बताओगे मुझे? डेवऑप्स में चलो, हाँ। वैसे तो मैंने अभी बताया लिखा था। डेवऑप्स में देखो यार, जो चीज़ें कवर करने की हैं वो कवर होंगी ही होंगी, उससे एक्स्ट्रा ही होगा वैसे। तो ओके ओके। लिनक्स, लाइक फॉर एग्जांपल LFCA वाला लेवल पे, यानी कि सर्टिफाइड, यू कैन गो फॉर लिनक्स सर्टिफिकेशन एज वेल। एंड AWS कवर कराऊंगा मैं, सिसॉप्स, डेवऑप्स, एंड आपका और क्या था, सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पे। ठीक है? यू कैन क्लियर दी 3 सर्टिफिकेशंस। अच्छा उसके बाद वी विल बी गोइंग विद स्टार्टिंग विद गिट, डॉकर ओके। एंड क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस में आई विल बी टीचिंग, लेट्स सपोज यू कैन से CK लेवल। CK आपके ऊपर डिपेंड करता है इफ यू वांट टू गो सर्टिफिकेशन और नॉट, बट उस लेवल का मैं करा दूंगा विद
प्रोमीथियस, ग्राफाना, लोकी, और क्या था, हेल्म, एंड क्यूब कॉस्ट, एंड आपका यू कैन से CSI ड्राइवर कैसे मतलब यूज होता है, एंड OPA, किवर्नो क्या होता है, आजकल बहुत सुना होगा किवर्नो लिनन के ऊपर, यू कैन जस्ट गो फॉर किवर्नो पार्ट एज वेल, एंड सीलियम क्या होता है, कैलिको क्या होता है नेटवर्किंग का, वगैरह वगैरह, लाइक एडवांस पार्ट। कूल। एंड देन वी विल बी गोइंग विद टेराफॉर्म, उसके बाद एंसिबल, उसके बाद गिटहब एक्शंस, ओके। एंड उसके बाद आपका जेनकिंस। एंड 5 प्रोजेक्ट्स मैं करवाऊंगा, फुल फ्लेज्ड कंपनी स्टाइल, एंड 5 प्रोजेक्ट्स आपको करने होंगे खुद से। क्लियर? ओके। कोई दिक्कत? नो सर, कोई इशू नहीं। यही चाहते थे सर सुनना? इसमें मतलब, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलो बोलो, आप बोलो। कुछ नहीं सर, मैं ऐसा बोल रहा था, ये कंटेंट मतलब अच्छा डीप डीप में आप बताओगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि सर्टिफिकेशन के लिए मतलब उतना ही मतलब कंटेंट पड़ा। देखो, सर्टिफिकेशन का मतलब होता है, देखो अगर मुझे होता देन आई कुड हैव जस्ट टॉट सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल, जो मार्केट में हर कोई पढ़ा रहा है। अच्छा। यू कैन इवन चेक, हर कोई बोलेगा ओ, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS हम्म, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, बट मैं यहाँ पे 3 कवर कर रहा हूँ, सिसॉप्स वाली सर्विसेज भी, डेवॉप्स वाली सर्विसेज भी, ऐसे वाली सर्विसेज भी। एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट किया हुआ है सर। हाँ, बट क्या इतना तो प्रॉपर उन्होंने मतलब बताया नहीं, मैंने खुद से ही करना पड़ा मुझे। आपने SSM करा है? नो नो सर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट SA किया है मैंने, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं 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 एसोसिएट। नहीं, SSM पढ़ाया जाता है उसके अंदर, सर्विस अच्छा SSM ऐसा है। AWS हाँ के। हाँ। अच्छा ओके देखा, वही ओके। तो, वही चीज है ना, तो दैट इज द हाँ हाँ। थिंग। राइट राइट। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। कहते रहो मार्केट पाइथन में नहीं है सब ना ये, इसमें? पाइथन के लिए नहीं, पाइथन नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। लेकिन सर बोल रहे थे बेसिक सिखाएंगे सर, ऐसा बोल रहे, क्या पता है पाइथन का क्या। बेसिक्स का फायदा है नहीं यार, बिकॉज इफ यू वांट टू गो अच्छा फॉर ऐसा। पाइथन हाँ डेवलपमेंट, हाँ। क्योंकि उसमें पाइथन आता है बोटो 3, साथ में आपका फास्ट API, ताकि यू कैन इसमें सर राइट पाइथन बैक। का यूज मतलब किस लिए होता है? स्क्रिप्टिंग के लिए होता है ना? नहीं, वो सिर्फ तो लोग बोलते हैं। पाइथन का मेन अच्छा काम होता ऐसा। है इसमें क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बोटो 3। उसके जैसे कि हम टेराफॉर्म पढ़ेंगे ना, टेराफॉर्म से वी कैन क्रिएट AWS सर्विसेज ओके यूजिंग ओके। पाइथन मोटो 3 एज वेल, यू कैन ऑल्सो क्रिएट AWS सर्विसेज, एंड वो आपकी एप्लीकेशन में ही बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन को हम्म। जब भी EC2 मशीन चाहिए होगी, ऑटोमेटिकली वो कॉल कर लेगा EC2 मशीन को, विदाउट अच्छा। डीलिंग विद एनीथिंग। ओके ओके, मुझे मतलब कोडिंग के हेल्प से मतलब बन जाएगा, ऐसा बोल रहा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो है। अगर ओके। पढ़ना है तो हाँ। प्रोबेबली मैं फुल स्टैक वाला बैच आगे सोचूंगा कराने का, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट बैच एज वेल। नो वरीज, वो तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। इफ यू हैव इंटरेस्ट देन यू कैन ज्वाइन पाइथन क्लासेस एज वेल, डोंट वरी। नहीं सर, मतलब विदाउट इसके भी अपने डेवऑप्स कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ, मेरा डाउट वो है। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी या ना। विद या विद पाइथन ही मतलब कंपलसरी ऐसा? पाइथन, देखो पाइथन जो वो पढ़ा रहे हैं ना, वो फॉर लूप इफ एल्स करा के ऊप्स करवा के खत्म कर देते हैं, उसके बाद कुछ करवाते ही नहीं, दैट इज इनकम्प्लीट। वो किसी काम की है नहीं, वो करो ना करो बराबर एक बराबर है। दैट इज बराबर। द मेन थिंग। जब तक तो सर आपने आप इसमें, बोटो 3 का, हाँ, हाँ, हम्म, बोलो बोलो। इसमें स्क्रिप्टिंग बताओगे आप मतलब, हाँ वो जी, बैच बैश स्क्रिप्टिंग जो। लिनक्स, बैश यहाँ पे कवर होगा। ओके। और मैं एक और चीज़ भूल गया मैं, यहाँ उसी बीच में मुझे याद आया था कुछ बोलने का, आप कुछ बोल रहे थे, तो एक टूल मैं भूल रहा हूँ, कुछ टूल यहाँ पे। चलो नो ये वरीज डेवोप्स आप। डेवोप्स में सर, हाँ, वो मैं कराऊंगा, लेकिन वो मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं लिख नहीं पाया सी आई उसको। सी डी सर, CI/CD। नहीं, दैट इज गिटहब एक्शन इन जेनकिंस, वो तो हो गया ओके था। हाँ, वो हो गया राइट।
प्रोजेक्ट टूल है, मुझे कुछ भी थोड़ा याद आ रहा कोई बात नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, डोंट वरी। है। ओके। तो हमारी ये बैच में पाइथन कवर नहीं होगा? पाइथन इस वाले में, इफ यू वांट टू हैव पाइथन देन आई विल टेक डेडिकेटेड सेशन फॉर पाइथन इफ यू वांट, बट उसके लिए फिर आपका 2-3 महीना एक्स्ट्रा चला जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, ओके। इट्स ऑल अप टू यू। पाइथन का एडिशनल इफेक्ट तब आएगा जब आपने बोटो 3 का एसडी के साथ में यूज करोगे, आप एपीआई सर्विसेज क्रिएट करोगे, यू क्रिएट सम बैकएंड। हाँ, मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, आई विल आल्सो टीच माई सीक्वल एज वेल। सीक्वल यस। वो भी कराऊंगा, डेटाबेस, हाउ टू हैंडल डेटाबेसेस। तो हाँ, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक इसका फायदा नहीं है। आप बोलोगे सर मुझे राइट। पाइथन आती है बट यू डोंट नो हाउ वेयर टू यूज पाइथन, तो वो अब बेसिकली आपको पता है कि मैं क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन मुझे यूज करना आता है नहीं, आई नो हाउ टू यूज ड्रिल मशीन बट आई डोंट नो वेयर टू यूज ड्रिल मशीन। मैं कहीं भी छेद कर दूंगा। राइट। ये तो है नहीं ना, वही तो, दैट इज द मेन थिंग। तो लोग कहते हैं कि अरे आई नो डेवऑप्स, बट डेवऑप्स तो जॉब है ही नहीं भाई। डेवऑप्स तो टूल्स, सेट ऑफ टूल्स हैं, इंस्ट्रक्शन, मतलब इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं वो, हाउ यस टू यस। डिप्लॉय एप्लीकेशन। ओके। क्लियर। बहुत लोग हैं इंटरेस्टेड हैं, वीकडेज वाले बैच में भी बहुत, मतलब बहुत लोग तो क्या बोलूं, बेचारे थक गए हैं पढ़ते पढ़ के। लेकिन जिन जिनको पाइथन पढ़ना है मैं उनको सेपरेटली ले लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले जो मेन कोर है जिस पर आपकी जॉब लगनी है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर राइट। लेते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत गैप बचेगा है, 80%, 20% अगर थोड़ा पेट में जगह बचती है, देन वी कैन हैव इट, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। वो तो आप साइमल्टेनियसली जब आप इंटरव्यू देते रहोगे ना, एंड अभी हम तभी उससे में पढ़ सकते हैं, कोई इसलिए इशू वाली बात नहीं है पाइथन को भी। पाइथन मतलब ज्यादा डीप में नहीं चाहिए ना सर इसके लिए? नहीं, यू विल बी नॉट एज हार्ड एज अ बैकएंड इंजीनियर ना। पाइथन ओके बैकएंड ओके। इंजीनियर के लिए चाहिए होती है, हाउ टू राइट राइट। क्रिएट प्रॉपर बैकएंड्स। है तो आप पाइथन समझ लो, या फिर सबसे अच्छा गोलैंग समझ लो। अब लोग गोलैंग इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि गोलैंग टफ है, क्योंकि मुझे अच्छा। गोलैंग आती है और मुझे सबसे कंफर्टेबल मैं गोलैंग में रहता हूँ। गोलैंग इज मच गुड इफ यू आर गोइंग इनटू डेवऑप्स, क्योंकि मीन्स क्यूबरनेटिस यू, अगर, हाँ। आप वो गोलैंड यूज करते हो सर? हाँ जी, मैं गोलैंग यूज करता हूँ फॉर राइटिंग क्यूबरनेटिस सीआरडीज। ओके ओके। ये क्या होता है, ये इंडिया में कोई बनाता ही नहीं है। अच्छा। कस्टम रिसोर्स बेसिकली ओके। क्यूबरनेटिस के। क्लियर एवरीवन? कैन आई आस्क वन क्वेश्चन इफ यू डोंट या श्योर श्योर श्योर, यही तो है टाइम। माइंड? हाउ मच sorry, how much year you have experience sir? बट बडी, How much years you have experience sir? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव? How आई many? हैव Yes. 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस। Okay. कम है लेकिन उतना है No, no. दैट बहुत है सर इतना। 2022 में मुझे 2 बार गूगल स्विट्जरलैंड ने मुझे अप्रोच किया था फॉर एसआरई टीम, एंड दोनों बार आई तो रिजेक्टेड। अच्छा। बिकॉज सही है सर। why why I rejected? A lot of people will laugh, but I was getting 33 lakhs per month is my billing पर मंथ? per पर month मंथ from थर्टी remote थ्री लैक्स jobs. Correct. ओके। जिसमें से प्रॉपरली जो मेरा बन रहा था, that was somewhere about 4.3 CR per year and I was paying tax of 1 CR per year. मतलब आप अभी ये पैकेज और पे वर्क पहली कर बात रहे तो, हो रिमोटली? जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स भरते हो ना ईयर के हिसाब से, हाँ हाँ। वी हैव टू पे एवरी क्वार्टर, एडवांस टैक्स चलता था हमारा यहाँ पे। क्योंकि जैसे ही मैंने एडवांस बट टैक्स नहीं भरा, मेरा जो सारी इनकम थी दैट विल बी फ्रीज्ड। क्लियर एवरीवन? So are you still in remote jobs and all, or have you left it? सॉरी, Are you still in remote jobs, or have you left it? एक्चुअली मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ यार। बहुत जल्दी नहीं हो गया सर?
मैंने इतना जोड़ लिया ना। वो तो है। तो आप ये होप कि आप भी और हमें जॉब नहीं कर रहे रिमोट सर जॉब्स क्रैक करना आप? सिखाओगे। क्या चीज? आई सेड कि होप आप हमें भी रिमोट जॉब क्रैक करना सिखाओगे। यार देखो, सब बोलते हैं लेकिन इन दी एंड कोई कर नहीं पाता। दैट इज द मेन थिंग। मैं तो हूँ साथ में। मैं तो बोला ही आपको कि मेरा साथ दो, बट जो मैं बोल वी वो। नीड योर फिंगर, वी जस्ट नीड योर सी गाइडेंस, दैट्स ऑल। सी व्हाटएवर आई से, डू इट 5 टाइम्स। वो सिर्फ मैं आपको यही चीज बोलता हूँ, कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, कोई यूट्यूब, कोई कोर्स, कोई यूडेमी, कुछ करने की नीड नहीं है। बस मैं एक चीज बोलूंगा, जो मैं करवाऊं उसको 5 5 बार कर लोगे, तुम्हारा ही बेनिफिट है उसमें, कुछ नहीं जाता उसमें। दैट इज द मेन थिंग। Yes, sir. ये भी ध्यान रखूंगा मैं। Is there any weekdays regular batches available? Yes, we do have regular batches available, but पता नहीं क्यों आपको वीकेंड में डलवा दिया है, बट यूजुअली होने वाला है। The previous weekday batch is going to be ended very soon. Don't worry. So you can join there as well. ये सर एक्चुअली पैक भी हम होने लोगों वाले ने हैं भी सर। डेली बैचेस के लिए सचिन सर को पूछा था। ये सचिन और ना, यार सचिन सर यार सर बहुत परेशान कर दिया सच बोलो ना। कोई नहीं जल्दी। मैं तो 1 मंथ से वेट कर रहा हूँ सर, आप मैं मतलब बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 मंथ से वेट कर रहा हूँ। मैं तो एक चीज बोल रखी है, मैं कहा अगर बच्चों अगर थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं तो उनकी रिफंड कर दो पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसी वाली बात नहीं, मैं तो साफ बोल रखा कि रिफंड देम। एंड मुझे आता है फीडबैक कि ऋषभ दे डोंट वांट रिफंड एज वेल, वो सिर्फ आपसे ही पढ़ना चाहते हैं। मैं कहा भाई ऐसा क्या जून, ऐसा क्या करवाता हूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आता। दैट इज द मेन थिंग। चलिए मैं। सेकेंड चीज क्या हो रहा है यार, बिकॉज आई एम इन दिल्ली एंड दे आर इन पुणे, है ना, तो अच्छा। मैनेजमेंट थोड़ा सा मुझे कंट्रोल नहीं रह पाता फिर भी। बट आई ट्राई माई बेस्ट एज वेल चीज़ों का करने के ओके। लिए। एंड तभी अब कल से नहीं, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स न्यू टीम, न्यू वी हैव हायर्ड न्यू टीम एज वेल, न्यू मैनेजमेंट ओके। वगैरह वगैरह। तो वो भी कर रहा हूँ मैं, बस क्या ही बोल सकता हूँ यार मैं। सर आई हर्ड एंड कि यू आपने कैन पुणे में ऑफलाइन भी सेट चालू किया है, ऑफलाइन भी ये है सब कुछ सेटअप किया है ऑफलाइन इन्फ्रा। हाँ, मुझे क्या लास्ट ऑफ टाइम आपशिन ने बोला था कि ऑफलाइन भी क्लासेस चालू होने वाले हैं पुणे में, समथिंग ऑफलाइन लाइक मैं नहीं दैट। पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन। ओके, मैं मतलब तो भाई क्लाउड रहेगा लेकिन आप नहीं हाँ, रहोगे वहां पे नहीं, हाँ, ऑफलाइन में। लेकिन जो ट्रेनर होगा, द ट्रेनर विल बी लाइक माई अंडर गाइडेंस। ओके। मैं तो भाई दुनिया घूमूंगा ना। मैं क्यों हाँ, वो तो पढ़ाऊं? सी एवरीवन, कैन यू जस्ट सी माय स्क्रीन, लाइक कैन यू सी मी गाइस एवरीवन? यस यस। यस देख पा ऋषभ। रहे हो आप लोग मेरे को? तो गाइस इट्स माय प्रॉपर स्टूडियो सेटअप दैट आई हैव राइट नाउ। ठीक है, फ्रॉम माय, बेसिकली वर्क फ्रॉम होम का यही फायदा होता है दैट यू गेट पेड फॉर वट एवर यू वांट टू हैव इट। क्लियर? लुकिंग लाइक अ सो गाइस, गेमर। नॉट गेमर यार, पता है जब पैसा आता है ना, तब मन करता है चीजें खरीदने का। राइट। तो वो सही तो लग होता है। रहा So है you सर guys, इसमें। you can just see like that one. I can show you guys. I have 10 laptops from System और 76, from MacBook, from like that one, from that thing. मैं यूज ही नहीं करता वो, सिर्फ मैं, मुझसे भाई ले जाते हैं कि ऋषभ एक लैपटॉप खाली है तो दे दे मुझे, ये है तो ले जाओ। मैं ले जाओ भाई, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है मुझे इस चीज़ों की। कैन यू सी एवरीवन? इनका स्टिकर हट गया, आई डोंट नो व्हाई। या आई गेस दे हैव अनलिस्टेड हेलो मूव, इनका उसी प्रोजेक्ट बेकार था। Then I have taught in cryo as well. I have taught in Newton School as well. सुना है guys? Newton School cryo. यस, यस यस बहुत न्यूटन स्कूल फेमस है सुना है। आजकल तो। And I started working, and कुछ चीज़ें हैं, कुछ companies that I can't list them just because of contractual parts. Contracts में नहीं लिखा होता that you can disclose that part. Cool everyone? यस। कोई दिक्कत मेरे बारे में? You can connect with me anytime. See, anywhere and everywhere. Cool. यस ऋषभ। आगे बढ़े, और कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली ऋषभ, लास्ट क्वेश्चन,
हम्म मैं अभी चेंज मैनेजमेंट में हूँ क्या, एक्चुअली चेंज एंड एवरीथिंग, चेंज इंसिडेंट एंड हम्म प्रॉब्लम मैनेजमेंट। सो अभी मैं हम्म मेरे को मूव करना है रिलीज मैनेजमेंट की तरफ। सो हम्म आफ्टर आपका कोर्स करने के बाद अभी मैं एक स्विच लेने वाला हूँ 2 महीने में एज अ चेंज ओके मैनेजर। अभी मेरे इंटरव्यूज हम्म वगैरह चल रहे हैं। सो आई डिमांडेड देम हम्म 15 LPA एंड दे आर हम्म रेडी, ऑन 2 मंथ नोटिस पीरियड के लिए भी रेडी है। तो उसके बाद जो मैं हम्म नेक्स्ट स्विच लूंगा तो मैं सोच रहा हूँ रिलीज मैनेजमेंट। सो डेवॉप्स की भी कोई ऐसी प्रोफाइल होती है रिलीज मैनेजमेंट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिलीज मैनेजमेंट जो भी प्रोफाइल मैंने देखी है, जिनका मैंने हम्म रिक्वायरमेंट देखा है, हम्म अज्योर डेवॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड देन रिलीज हम्म के जो भी कंसेप्ट है वो आने चाहिए, दैट्स ऑल। उतना ही होता है। और चेंज हाँ, मैनेजमेंट का, और मैं ऑलरेडी चेंज basically में हूँ। you will be more into pipeline part. ओके, इसमें पे आउट होता है अच्छा खासा? वो अंडर उससे क्या आता है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। लाइक दैट वन इफ यू आर टेकिंग 15 LPA ना, देन हम्म। अगर आप वहां तक पहुंचते तो then यार पता नहीं, वैसे तो देना चाहिए इनको इंडिया में 22-25 तक आराम से, ओके, यू कैन नहीं अभी डिमांड मैं चेंज में जा रहा बेस्ड ऑन हूँ। मेरा इंटरव्यूज। नेक्स्ट जो हाँ, होगा वो रिलीज में होगा। मैंने ऐसे स्ट्रैटेजी बना के रखी है, आपका एक कोर्स होने के बाद देन मे बी आफ्टर डेवऑप्स रिलीज वगैरह। आफ्टर रिलीज वो बिकम गोइंग इनटू रिलायबिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबिलिटी, और यू कैन गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर या इंसिडेंट मैनेजर एज वेल, इंसिडेंट के ऊपर भी। आई एम ऑलरेडी इंसिडेंट मैनेजर, इंसिडेंट प्रॉब्लम एंड चेंज मैनेजर, IPC, इंसिडेंट किस इंसिडेंट में? in terms of network, SD-WAN, and Azure. हाँ, so you already will have heard about Splunk as well, right? Not the technical part. I'm the bridge in between the technical team and the हाँ, client. तो after Kubernetes part of it ना, you can become incident manager as a, like in proper DevOps. You will be Okay, like SRE. senior DevOps, SRE properly. Okay, understood. Yeah. Yes, anyone else? Amit ji, you were asking something? हाँ, मुझे रेगुलर बैचेस अटेंड करना था, तो वो कितने मंथ्स का होता है जनरली? यार देखो, रेगुलर बैच जो होता है वो होता है 5.5 months, यू कैन assume, एंड वीकेंड बैच जो होता है दैट टेक्स अबाउट 6 to 8 months। बस फर्क यही आ जाता है। ओके। बट इसमें भी फायदा नहीं होता, वीकडे वाला भी मैंने चलाया ना, बहुत चलाया मैंने। इसमें भी बच्चों को वीकेंड चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तो एक ही पढ़ता है वो, ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को। एंड वीकेंड में कितने आवर्स की क्लासेस होती है? वीकेंड में वी विल बी हैविंग 2 2 hours क्लास फ्रॉम, लाइक प्रोबेबली ये 2 वीक तो छोड़ के, उसके बाद वी विल बी हैविंग 8:30 to 10:30, सैटरडे एंड संडे। एंड इसका जो एंड आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? जैसा हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वी आर एलिजिबल हम्म, फॉर डेवलप इंजीनियर और नहीं? यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट? So we will be like be ready to join as somewhere like as a DevOps engineer or SRE or what? Like, You will be expected to work as a senior DevOps engineer, not normal DevOps engineer, okay. or you can say staff DevOps or SRE और क्लाउड आर्किटेक्ट, लाइक दैट वन। वो आपको खुद खुद पता चल जाएगा जब आप इंटरव्यू दोगे ना। आप मुझे बोलोगे सर, जिनको जो मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चंस वो खुद कचरे वाले हैं, दैट इज काइंड ऑफ फीडबैक दैट आई गेट। Okay. कूल, एनीवन एल्स? डेवऑप्स इंजीनियर तो बहुत ही हल्की चीज है, ये तो आप मतलब प्रोबेबली फर्स्ट 3 मंथ्स में भी आप यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट। बट जब एग्जाम आप दे ही रहे हो तो ट्राई टू लर्न कंप्लीट थिंग्स। कूल एवरीवन। Just एंड ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, मैं आपसे थोड़ा सा ओवरकिल करवाऊंगा। यू नो मीनिंग ऑफ ओवरकिल? no issue. ओके,
अगर मैं आपको बोलूंगा इस एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से आप सेकंड फ्लोर से जंप मार लो, आप मार लोगे एवरीवन? नहीं, क्यों? चोट लग जाएगी। फर्स्ट फ्लोर से? हाँ, वहां से तो मार ही लेंगे। अब मैं आपको हर रोज 10वीं मंजिल से फेंक रहा हूं, एवरी डे, और कुछ टाइम बाद में बोलूंगा आपको कि भाई सिक्स फ्लोर से जंप मारो, फिफ्थ फ्लोर से जंप मारो, मार लोगे आप? हाँ, उसकी तो आदत पड़ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकिल। ओ, मैं आपको ऐसा करा दूंगा, इतना इतना आपको सुनाऊंगा, इतना मैं आपको सरकाजम दूंगा। हालांकि डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट ब्रेक इन बिटवीन, एक इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से मार्शल आर्ट्स। क्लियर एवरीवन? मैं आपसे एक्स्ट्रा करवाऊंगा, आपकी जान ले लूंगा मैं आपके, बेसिकली समझ लो। बट जो एंड का रिजल्ट होगा ना, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। वो आप मुझे भी बोल सकते हो, यू वांट टू हैव दैट थिंग, या फिर मुझे नॉर्मल नॉर्मल करा दो, मतलब ठीक ठीक करा लो जो नॉर्मली मेरी जॉब लग जाए। यू वांट टू हैव इट, और यू वांट टू बिकम अ किंग इन डेवऑप्स या क्लाउड या एसआरई वगैरह वगैरह। यू वांट टू अमेज द इंटरव्यू, यू वांट टू अमेज, यू वांट टू गेट गुड जॉब्स बेसिकली रिमोटली एज वेल। रिमोट भी मिल सकती है बहुत प्यार से, इफ यू प्ले रियली वेल। वो चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी हड्डियां पसली तोड़नी पड़ेंगी, दिमाग के घोड़े तोड़ने पड़ेंगे। एंड आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, आई हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट। तो आप बताओ। ऑब्वियसली ओवरकिल। एवरीवन, आप यूनानिमसली डिसाइड करो, आप सब लोग। इट इज नॉट लाइक फ्रॉम वन पर्सन टू सेकंड पर्सन लाइक दैट वन। always. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कर नहीं पाओगे, आप कर लोगे। लेकिन वो ना एक आलस होती है, आलस, लेजीनेस, वो आपको करने देगी नहीं। लेकिन मैं उस लेजीनेस को हटा दूंगा, इतना ओवरकिल कराऊंगा आपको कि आपको मैं जो बोलूंगा ना कि भाई सिक्स फ्लोर से कूद जा, यू विल बी लाइक अरे ये तो बच्चों का खेल है। तो इफ यू वांट टू हैव इट एवरीवन, पूछ रहा हूँ आप सबसे, आप क्या चाहते हो बताओ? सोच के बताओ एवरीवन। क्या हो गया, चुप क्यों हो गए एकदम से, सन्नाटा क्यों है? अरे क्या हो गया, थोड़ा बोल रहा हूँ, अपना खून दे दो मेरे को। नहीं? हेलो? हाँ सर, दे देंगे। दे देंगे, खून दे देंगे। चलो अभी मैं कम रखता हूँ, अभी देखते हैं कि क्या होता है। कूल। हम्म। एक चीज बताओ गाइस एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर गाइस? कंप्यूटर क्या होता है? इट्स अ मशीन which takes input and give outputs. और मशीन। मशीन, कंप्यूटर। एंड वन प्लस, कैन यू हियर मी? वन प्लस प्लीज रीनेम योर सेल्फ। भाई आप हो कौन? हेलो मैम, हेलो सर, प्लीज रीनेम योर सेल्फ। Not replying, then I will be putting you up in waiting room, guys. Cool. कंप्यूटर, कंप्यूटर में तीन पार्ट होते हैं गाइस एवरीवन, सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज। फटाक से बताया करो गाइस कि सीपीयू कैसे यूज होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेस यूनिट। यूनिट। सेकंड, रैम, रैंडम एक्सेस
मेमोरी आज के टाइम पे सभी के पास मोबाइल फोन है, करेक्ट और नॉट, जिसमें एक सीपीयू होता है, रैम होती है, स्टोरेज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एवरीवन? एंड गाइस, देयर इज ओनली वन रूल इन माय क्लास, जब भी मैं कुछ पूछूं आपसे, हाँ ये यस और नो, से यस और नो, आया नहीं आया। क्लियर एवरीवन? सब के सब यस एक सर। साथ बोलेंगे, यस। Yes, Yes, sir. Rishabh. ठीक है? इंटरेक्टिवनेस गाइस मुझे चाहिए होती है, बिकॉज थोड़ा सा मुझे भी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे भी। तो एवरीवन, सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये आपका ब्रेन होता है। जस्ट लाइक इफ यू हैव अ ब्रेन इन योर ह्यूमन बॉडी, जो आपको हेल्प करती है क्या चीज करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे कि मैंने अमर को बोला, अमर अमर एक काम करो, मेरे लिए मोमो, चिली पोटैटो, चाउमीन, बर्गर वगैरह 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 ले आओ। क्लियर और नॉट? अब अमर गया स्कूटी लेके मार्केट के अंदर, ठीक है? अमर भूल गया, आई डोंट रिकॉल वट एवर द थिंग्स ही हैज ऑर्डर्ड। तो अमर क्या करोगे? आप मुझे फोन करोगे वापस बोलने के लिए कि ऋषभ भाई क्या क्या मंगवाया था आपने? राइट और नॉट? राइट Yes, एवरीवन? Rishabh. तो टास्क तो मुझे राइट। याद है कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या चाहिए था? आई वॉन्ट टू गो टू चाइनीज पॉइंट एंड गेट सम ऑर्डर। क्लियर एवरीवन और नॉट? लेकिन मुझे क्या क्या परचेज करना था? डिड आई रिमेम्बर? नो। No. मुझे याद था नहीं था? दैट इज द थिंग गाइज, आई नीड मेमोरी। मेरे को मेमोरी लगेगा। whatever the task they are giving me, I have to save it in my memory. Clear everyone? नहीं हुआ? अमित, राहुल, योगेश, सिद्धि? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. यस। क्लियर एवरीवन? अब यार एक बात बताओ, अगर मेरे साथ दो बच्चे हों, एक टॉपर, एक वीक, एक वीक, एक टॉपर, सॉरी, एक वीक और एक टॉप स्टूडेंट लाइक फ्रंट वन, और दोनों वीक हो मेरे पास, या फिर दोनों टॉपर हो मेरे पास, तो विच कॉम्बिनेशन हैज मोर चांसेस ऑफ विनिंग द कंपटीशन? Two top. दोनों टॉपर्स का? एवरीवन? Yes. व्हाई? यस। यस सर। Yes. क्यों क्यों? उनकी मेंटल कैपेसिटी एंड कॉग्निटिव स्किल अच्छी है. बेसिकली कोऑर्डिनेशन। Yes. यहाँ पे एक दूसरे के साथ दे हैव टू डू मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत। यहाँ पे उनको पता है कि भाई ये भी सही, ये भी सही, दोनों भाई दोनों तबाही। क्लियर एवरीवन और नॉट? दो भाई, दोनों तबाही। परफेक्ट। सिमिलरली गाइस, अगर परफेक्ट। मुझे सीपीयू के हिसाब से, सीपीयू इज वेरी हैवी, क्लियर एवरीवन, ही हैज सम काइंड ऑफ गुड स्पीड। उसकी स्पीड होती है गाइस बिलियंस में, बिलियंस ऑफ हर्ट्स। उसे हम कहते हैं गीगा हर्ट्स। क्लियर एवरीवन? 1 गीगा हर्ट्स, 2 गीगा हर्ट्स वगैरह वगैरह, बिलियंस ऑफ टास्क करने होते हैं उसको। एंड उसको एक चाहिए अपने हिसाब से। अगर यार देखो, सिंपल सीधी बात है, अगर मैं स्मार्ट हूं, मैं गोरा हूं, मैं, मेरी हाइट अच्छी है, तो मैं चाहता हूं मेरा पार्टनर भी क्या हो, अच्छा हो, मेरी हाइट के बराबर हो वगैरह वगैरह। क्लियर एवरीवन और नॉट? है ना? यस। देखो, यस सर। वो हम देखो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो नहीं होते, बट आई कैन एक्सपेक्ट ना कि भाई मुझे भी साथ में कोई चाहिए ऐसा पार्टनर दैट विल लुक लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो अब मुझे बताओ, अगर सीपीयू को भी तो कुछ होगी रिक्वायरमेंट्स कि भाई अगर मैं स्टोरेज में स्टोर करूंगा डेटा, तो आई नीड सम गुड रैम। तो भाई रैम ही है जो उसको एक हिसाब से झेल सकती है। क्लियर एवरीवन? रैम इज ऑल्सो वेरी फास्ट। तो रैम में आपके एप्लीकेशन स्टोर होते हैं। कोई दिक्कत गाइस? सर, कोई दिक्कत यहां नो तक? सर। अब रैम इज वेरी एक्सपेंसिव। रैम क्या होती है? एक्सपेंसिव। अभी मैं चेक करता हूं आपको गाइस एक्सपेंसिवनेस। इफ आई जस्ट गो 16 GB रैम, प्राइस कितना आ रहा है गाइस यूजुअली? एवरीवन कितना आ रहा Almost 9,000. 7,000। 9,000। है एवरेज? एक अच्छी, इफ आई गो फॉर क्रूशियल पार्टी, तो मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी की है, माई नेक्स्ट, ये जो चीनी चाइना वाली कंपनीज हैं। इफ आई गो फॉर क्रूशियल गाइस, क्रूशियल इज वेरी गुड 15,000। कंपनी, 10 15,000। ये तो अभी खैर बढ़ गया प्राइसिंग ड्यू टू
पार्ट ऑफ एआई के चक्कर में। लेकिन क्या मेरे पास इतना पैसा है गाइस दैट आई विल बी स्टोरिंग माय डेटा इनटू रैम एवरीवेयर? सॉरी, क्या आज के टाइम पे 16 GB मेमोरी सही रहती है? बताओ, नहीं ना। No. देन गाइस वी नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन। ऑल्सो रैम में एक और डिसएडवांटेज है, इट इज वोलेटाइल इन नेचर। क्या मतलब? अब देखो, जब भी आई वॉन्ट टू सेव माई डेटा इन टू रैम, रैम को चाहिए होता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? बिजली है तो वो सेव करेगा, बिजली नहीं है तो वो उड़ा देगा। कोई दिक्कत? जैसे ही आपने लैपटॉप क्लोज करा, ऑल दी डेटा विल बी डिलीटेड। आप वो चाहते हो? नहीं ना। दैट इज वाई वी गो फॉर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज विच इज अवर हार्ड ड्राइव्स, अवर SSDs वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत? और आपकी No, पेन Rishabh. ड्राइव सुना होगा आपने, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, लाइक दैट वन, दे हेल्प अस टू स्टोर परमानेंट स्टोरेज। कोई दिक्कत है गाइस? No, Rishabh. अब मुझे फटाक से बता के दिखाओ, कैन यू सी माई टास्क मैनेजर गाइस एवरीवन? Yes, Rishabh. उसमें मेरा डेटा जो है पहले कहाँ जा रहा है, कहाँ को जा रहा है? इट इज गोइंग टू मेमोरी, रैम, एंड स्लोली स्लोली डेटा इज बिंग ट्रांसफर टू वेयर? Disk storage. Why? Because every time we cannot store my data into RAM. RAM is volatile. जैसे ही मैंने कंप्यूटर बंद कर दूंगा, all of my data will be gone. Clear everyone? And if you just see my performance, can you see guys my CPU everyone? कितनी गीगाहर्ट्ज की स्पीड है वगैरह वगैरह। एंड यू कैन सी माई रैम हेयर, 2 GB ऑफ रैम। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आए नहीं आए? समझ गए. Yes, sir. क्या समझे गाइस? RAM is volatile in nature. So whatever task is being performed, first go into CPU, then go into memory, then go into storage. क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत? हम्म, यहां तक कोई दिक्कत हुई? नो। No, Rishabh. अब सारे ITL बन गए, ठीक है, नॉन IT से IT में ट्रांसफर हो गए। नाउ एवरीवन, मुझे एक चीज बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? Connection नेटवर्क of क्या होता one है? or more computer. करेक्ट। सो गाइस, नेटवर्क मींस कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। कोई दिक्कत? आप सबके घर में गाइस वाईफाई है ना? वाईफाई, यस दिस सर। वाईफाई, ये वाईफाई राउटर होता है, ये वाईफाई राउटर है, बिल्ली नहीं है, ठीक है। दिस वाईफाई राउटर इज बीइंग कनेक्टेड टू माय मल्टीपल मल्टीपल डिवाइसेस। कोई दिक्कत? एम आई गोइंग वेरी फास्ट या स्पीड ठीक है? मैं थोड़ा सा फास्ट जा स्लो रहा हूँ? कर देंगे तो बढ़िया होगा. ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, क्या मतलब इसका? यार ऋषभ, जब हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं वाईफाई राउटर से, तो एक हम बोलते हैं कि हम अपने नेटवर्क के अंदर हैं, दिस इज अवर होम नेटवर्क। करेक्ट और नॉट? हम जैसे ही नेटवर्क के बाहर जाते हैं, कैन आई यूज माई नेटवर्क अगेन गाइस? नो। नो। दैट मीन्स नो सिग्नल। तो नेटवर्क मीन्स कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर। जब तक आपकी सांस चलेगी, तब तक इसकी, क्या बोलते थे, क्या क्या डायलॉग था वो, शोले वाला, जब तक आप कनेक्टेड रहोगे वाईफाई राउटर के साथ, यू विल बी गेटिंग इंटरनेट। क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, Rishabh. समझ में आया नहीं आया? अच्छा जी, अब आपने एक चीज यूज करी। अच्छा, फॉर लॉन्ग हाउ मेनी पीपल हैव यूज इंटरनेट?
किसने इंटरनेट यूज करा है? आजकल सभी करते हैं। एवरीवन। सिद्धि, राहुल, योगेश, अमित, अमर। Everyone, sir. यस ऋषभ। Yes, sir. या व्हाट इज इंटरनेट? अगर आप सबने यूज करा है इतने सालों से, व्हाट इज इंटरनेट? इट्स अ पब्लिक नेटवर्क सर, which we can access हम्म। from our नो। devices. नो। Interconnection of multiple devices throughout the world. नो। नो। सी, आप सब उसको यूज कर रहे हो भाई, हर रोज। अमित जी, क्या हो गया? जी हाँ, बोलिए। इंटरनेट क्या होता है? Internet is like a medium where we can communicate with each other with the help of internet. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विद अदर। अरे इंटरनेट होता क्या है प्रभु? डेटा आपका पास आउट हो जाता है आपको, डेटा क्या होता है? वो पास। आपके आपको मिल जाता है, मतलब बाहर का डेटा इजीली आपको मिल जाता चलो, आज के बाद कभी नहीं भूलना इंटरनेट होता क्या है। नेटवर्क इज क्लियर एवरीवन, नेटवर्क क्या होता है? Yes ऋषभ। नेटवर्क पे चल गया। अब ये नेटवर्क क्या हर घर में होता है? ये नेटवर्क आपके घर की कॉलोनी में कनेक्ट होगा ना एवरीवन? होम टू, यस। होम थ्री, फिर ये पूरी सिटी बनाएगा, फिर ये पूरी स्टेट बनाएगा, फिर उसके बाद कंट्री बनाएगा। कंट्री बनाएगा, उसके बाद पूरी कंट्रीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, नॉट कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस इज अंडर नेटवर्क। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स connected together globally. क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक डेटा पड़ा है यूएस के न्यूयॉर्क में, कहीं से एक मशीन है, कोई सर्वर है, उस सर्वर में कोई डेटा पड़ा हुआ है, तो कैन आई एक्सेस फ्रॉम इंडिया एज वेल? यस क्या वी मैं कैन। Yes. अपने घर से यस। एक्सेस कर सकता हूं? यस यस। यस। क्यों भाई? बिकॉज माई बिकॉज ऑफ नेटवर्क इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, एंड वो इस कंट्री में जा रहा है। पहले मेरे जाएगा दिल्ली में सर्वर पे, फिर कंट्री कनेक्ट करेगा, देन गोस टू लाइक दैट यूएस सर्वर वगैरह वगैरह। तो ये बहुत वेरी फास्ट वे में होता है, दैट यू विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट वे। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? गॉट इट ऋषभ। दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट। एंड इंटरनेट जो होता है ना, इट इज कनेक्टेड लाइक इंटरनेट केबल्स। इंटरनेट cables underwater. Can you see everyone here? Yes. ऐसे दुनिया भर में हमारी वायरिंग कनेक्ट हो रखी है यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह वगैरह होती है। कोई दिक्कत याद है गाइस? अब कहीं पे भी, अब देख रहे हो गाइस, यहाँ पे एक पड़ता है नॉर्थ कोरिया। देखना, कैन यू सी नॉर्थ कोरिया गाइस? एवरीवन? यस। अरे कहाँ गया? नॉर्थ कोरिया दिख गया गाइस आपको? यहाँ पे नॉर्थ कोरिया यहाँ पे होगा। इस कंट्री में क्यों केबल नहीं है? कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे। If I just show you guys North Korea in night, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्या है वहां पे? क्योंकि वहां पे इंटरनेट बैन है गाइस। वहां पे यूट्यूब, वहां पे गूगल सब बैन है।
क्लियर एवरीवन और नॉट? बाहर की वर्ल्ड से वो कनेक्ट ही नहीं है वहां पे। कोई समझ में आया नहीं आएगा इस कोई दिक्कत? तो अगर Understood. कोई कंट्री कनेक्ट नहीं होगी इंटरनेट से, देन कैन दे एक्सेस एनीथिंग गाइस? नो। वो दूसरी कंट्री या दूसरी कंट्रीज का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट? Rishabh. व्हाट इज WWW? वर्ल्ड वाइड वेब। अरे भाई साहब, होता क्या है? सॉरी, क्या होवे? क्या होता है ये? It used to link web pages. ओके, प्रिसाइजली, ग्लोबल वेब। प्रिसाइजली और देयर। अच्छा, आपने कभी वेब देखा है? हाउ इज दी वेब? मकड़ी का जाला. यस। अब मकड़ी का जाला कितना स्ट्रांग होता है, करेक्ट और नॉट? बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई फंस जाए उसमें, कैन इट गोज आउट फ्रॉम दैट मकड़ी का जाला? No. तो वर्ल्ड वाइड वेब भी गाइस एक वेब है, जहां पे किसी कोने में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, वीडियो, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? उसको एक्सेस करने के लिए अपन को चाहिए ब्राउजर। ठीक है? आप लोग क्या यूज करते हो? क्रोम और ब्रेव और एज। क्यों यूज करते हो आप लोग? ताकि यू कैन ट्रेवल द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, एंड वहां से आप लोग एक्सेस कर पाओ वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत? No, Rishabh. नहीं हुआ क्लियर ये? सॉरी, दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन और नॉट? Clear, यस। Rishabh. क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर ये मकड़ी का जाला इतना वो है, दैट मीन्स के यू कैन से, क्या कहते हैं इसको, यू आर लाइक रियली वॉइड, लाइक यू कैन से, क्या बोलते थे उस वर्ड को, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट वर्ड। या दैट यू आर वोलेटाइल दैट मच कि यू कैन गॉट लॉस्ट इजीली। वोलेटाइल, इतना वोलेटाइल हो दैट यू कैन गेट लॉस्ट हेयर वेरी वेरी इजीली। तो उससे बचने के लिए क्या करोगे आप, ताकि आप इसमें खो ना जाओ? तो वी विल बी प्रोवाइडिंग एन आईपी एड्रेस। सुना आईपी एड्रेस क्या होता है? यस सर। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस को, हर एक यू कैन से जो भी इंटरनेट यूज करेगा, उससे ये एड्रेस दिया ही जाता है। कोई भी देखा ना, जब अंडर वाटर डाइव करते हैं एवरीवन, इफ एनीवन डाइव्स अंडर वाटर, दे हैव ऑक्सीजन टैंक, दे हैव दिस काइंड ऑफ सूट वगैरह। व्हाई? ताकि वो सांस ले पाए, ताकि वो दिख पाए कि अच्छा हो दिस वन इज गॉन। सिमिलरली गैस, अगर आप इंटरनेट ट्रेवल करना चाहते हो, यू हैव टू वियर दिस आईपी एड्रेस। कूल एवरीवन? अच्छा, हाउ मेनी पीपल हैव आधार कार्ड? एवरीवन। हाउ मेनी पीपल हैव पासपोर्ट? है पासपोर्ट? नो। No. कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। बेटर है बना लो, बिकॉज अब मैंने मम्मी का, मैंने रिन्यू करवाया है। भाई इतना वाहियात कवर कर दिया उन्होंने, इतना वाहियात कवर कर दिया, पेज की क्वालिटी खत्म कर दी उन्होंने। पहले था पासपोर्ट जो अभी मेरा वाला है, इट्स गोइंग टू बी एक्सपायर इन 2028 में, खत्म हो जाएगा मेरा, एक्सपायर हो जाएगा। इतना अच्छा पासपोर्ट है ना, मतलब मजा आता है, मक्खन की तरह पेज। अब तो बिल्कुल ही कॉस्ट कटिंग कर दी उन्होंने। पासपोर्ट, अगर बाय चांस सिद्धि, कैन यू हियर मी सिद्धि? Yes. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को थप्पड़ मार दिया,
तो क्या होगा आपके साथ? पुलिस आएगी, यस। कंप्लेंट होगी, पुलिस यस। स्टेशन जाओगे, क्या बोलेंगे आपको? क्या सबमिट कराओ, क्या दिखाओ हमें? आधार कार्ड या पासपोर्ट? आधार कार्ड। क्यों क्यों, वाई वाई? पता नहीं सर। सॉरी। कोई पुलिस थाना गया, कोई पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन? एनीवन? लड़ाई वड़ाई हुई है वहां पे? चलो छोड़ो, कोई नहीं। अगर पुलिस वाले को आपको वेरीफाई करना है कि भाई तू यहाँ का नागरिक है नहीं है, तो क्या चेक करेगा वो, पासपोर्ट या आधार कार्ड? पासपोर्ट। आधार पासपोर्ट। कार्ड। पासपोर्ट या आधार कार्ड, वापस पूछ रहा हूँ। पासपोर्ट। रहोगे तो शायद आधार कार्ड, बाहर रहोगे तो पासपोर्ट। करेक्ट। आधार कार्ड। आधार कार्ड सर, आधार कार्ड। आधार कार्ड। आधार ही है नई पहचान मोदी सरकार। क्लियर एवरीवन और नॉट? राइट। आधार कार्ड। बाय चांस आप चले गए जापान में, जापान में इंग्लिश नहीं है, वहां पे दे स्पीक जापानीज। कॉन्निचीवा, वाताशी शब्द है, सरगतो गोजाइमास। अगर आपसे कोई ऐसे बात कर रहा है वहां पे, देन यू विल बी क्वाइट सरप्राइज। आप खो गए जापान के अंदर, तो आप कहाँ जाओगे? नियर बाय पुलिस स्टेशन। करेक्ट और नॉट? अब वहां का पुलिस वाला क्या पूछेगा आपसे, पासपोर्ट या आधार कार्ड? पासपोर्ट। पासपोर्ट। क्यों भाई? क्यों क्यों क्यों? वहां पासपोर्ट आइडेंटिफाई होगा। करेक्ट, दैट मीन्स आधार कार्ड इज अवर लोकल आईडी, पासपोर्ट इज अवर इंटरनेशनल आईडी। सिमिलरली हमारे पास भी दो टाइप के एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। कोई दिक्कत? मैक एड्रेस मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल एड्रेस। ये एड्रेस ना, आपका जब फोन, डिवाइस कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है, उसके साथ ये एड्रेस एक छोटे डिवाइस में आता है, विच इज नोन एज एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कोई दिक्कत? इस चिप के बिना, इस कार्ड के बिना आप लोग कोई भी नेटवर्क में नहीं आ सकते। कोई दिक्कत? तो इस नेटवर्क इंटरफेस का एक कार्ड होगा ना, यहाँ पे एक चिप का एड्रेस होगा। क्लियर एवरीवन और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वाईफाई राउटर है, वाईफाई राउटर के सामने तीन डिवाइस हैं, डिवाइस वन, डिवाइस टू, डिवाइस थ्री। सो वाईफाई राउटर विल हाउ आइडेंटिफाई कि भाई ये डिवाइस अलग है, ये डिवाइस अलग है, ये डिवाइस अलग है। तो दे विल बी हैविंग मैक एड्रेस हेयर एज वेल, मैक एड्रेस हेयर एज वेल, मैक एड्रेस हेयर एज वेल। तो हर एक डिवाइस का खुद का एक फिजिकल एड्रेस होता है, विच इज नॉन चेंजेबल। ये चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत? समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया? सर वंस मोर, फिर से बताओ। कहाँ से नहीं आया ये बताओ? स्टार्टिंग से मतलब, को मैक्स से बताया ना। मैक एड्रेस जो होता है ना, इट्स अ फिजिकल एड्रेस, यानी कि ये आपकी चिप में लगा होता है। कोई दिक्कत? जब आपका फोन, आपका डिवाइस जब बनता है, वो जैसे आता है नेटवर्क के साथ, वो उस डिवाइस पे लगा होता है। कोई दिक्कत? वो क्यों लगा होता है? ताकि जब भी कोई डिवाइस या नेटवर्क में वो आए, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। आधार कार्ड सबका अलग अलग होता है ना, जैसे ही आधार कार्ड डलेगा उसमें, तो वो क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेगा कि भाई ये इंसान है, इसका एड्रेस ये है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। हम्म। सॉरी, क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया, नहीं आया? मैक एड्रेस यस इज यस। आधार एड्रेस, आधार कार्ड होता है ये।
लेकिन जैसे ही आप चले गए कहाँ, www में, क्या उन्हें पता है मैक एड्रेस के बारे में? नहीं ना। नो। वो क्या चेक करेंगे? आपका आईपी एड्रेस, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। व्हाट इज अ प्रोटोकॉल एड्रेस एवरीवन? लाइक रूल। यस, सो प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अपन लोग, रेगुलेशंस जो अपन लोग कंसिडर करते हैं while sending data from one device to अदर डिवाइस। अगर मुझे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कोई डेटा भेजना है तो मुझे कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको बाइक स्कूटी गाड़ी चलानी है, यू हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स एवरीवन, और नॉट? यस। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोटोकॉल। तो फुल फॉर्म क्या है आईपी एड्रेस का? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कौन देता है ये आईपी एड्रेस? आपका आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस इंटरनेट प्रोवाइडर। कोई सर्विस दिक्कत? प्रोवाइडर। कौन है मार्केट में नो। सर्विस प्रोवाइडर? फॉर एग्जांपल एयरटेल हो गया एक तो, और जियो। जियो हो गया, और वोडाफोन वगैरह वगैरह। तो भाई आप सबने इमेजिन कर रखा होगा गाइस कि आईएसपी आपको एक तार ला के देता है, केबल, जो आप लगाते हो कहाँ पे? अपने घर में। करेक्ट और नॉट? घर में कहाँ लगता है ये? वाईफाई राउटर के ऊपर। और वाईफाई राउटर क्या करता है? इट गिव्स यू एंड कनेक्ट्स टू यू मल्टीपल डिवाइसेस। कोई दिक्कत एवरीवन? तो जैसे ही मैक एड्रेस नोट होता है वाईफाई राउटर को, तो मैक 1, मैक 2, मैक 3, अब भाई मुझे फेसबुक चलाना है, तो दिस डिवाइस विल सेंड द रिक्वेस्ट कि भाई राउटर मुझे इंटरनेट दे। अब वो कहाँ रिक्वेस्ट जाएगी? टू माई आईएसपी। अब यहां के बाहर तो मेरा मैक एड्रेस काम नहीं आएगा ना। आई विल बी यूजिंग माई आईपी एड्रेस। क्लियर एवरीवन और नॉट? ताकि मैं इंटरनेट घूम पाऊं। समझ में आया नहीं आया? मैक एड्रेस क्यों दिया यस। गया वहां पे? ताकि वाईफाई राउटर अंडरस्टैंड कि मुझे डेटा किसको भेजना है भाई। अगर बाय चांस ये वाला डिवाइस इंटरनेट मांग रहा है, मैंने यहां भेज दिया, तो क्या ही फायदा उसका? तो दैट इज वाई मैक एड्रेसेस आर देयर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकली, कि मैं अपने लोकल नेटवर्क में समझ पाऊं। समझ में आया नहीं आया एवरीवन? नहीं आया लगता है। आज के लिए इतना रखते हैं, डोंट वरी। आ गया आ गया। यस। है, हो गया हो गया। नहीं, समझ आ गया। आ गया समझ में? यस, समझ आ गया। गाइस, इज एवरीथिंग क्लियर? सब क्लियर है? यस। Yes. Yes, Rishabh. सब क्लियर हो गया? हाँ जी। अभी आगे तो बाकी। सब क्लियर हो गया? सब मतलब ऊपर से ऊपर हो गया, क्लियर हो गया, दिमाग से उड़ गया, नए या दिमाग में। कुछ दिमाग में है? हम्म। आया समझ में? एक बार इसको वापस से रिवाइज करो गाइस, ठीक है? एंड ट्राई टू सेट दिस थिंग इन योर माइंड। मेक योर माइंड टेक्निकल, कि भाई अच्छा ये होता है, ये चीजें होती हैं। क्लियर? कल हम पढ़ेंगे ओके। आईपी एड्रेसेस के बारे में डिटेल के अंदर, IPv4, IPv6 एंड सो ऑन। यानी कि नेक्स्ट वीक तक अपन लोग अपना नेटवर्किंग खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत? एंड वी विल बी स्टार्टिंग लिनक्स। ओके। एंड प्रोबेबली आई कैन ट्राई टू कंप्लीट लिनक्स टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, अगर आप चाहो तो।
कूल एवरीवन? कोई डाउट, Yes. कोई क्वेरीज मेरे लिए, कोई फीडबैक तो देना चाहो आप मुझे? कैसा लगा क्लास? awesome. बढ़िया. So today was only introduction to all those things, no? इस काफी इंट्रोडक्शन, जस्ट लाइक हाउ डिड यू लाइक माय क्लास बेसिकली, दैट वाज काइंड ऑफ इट. Okay. It was a good session. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. मैं क्या करूं अपनी टीचिंग में, ऐसा क्या डालूं जो आपको और अच्छा लगे? क्या कर सकता हूं मैं सर आपकी खिदमत के लिए? मालिक बताओ. बताओ बताओ गाइस, फीडबैक यू वांट मी टू ऐड इन माय टीचिंग? कुछ नहीं, सब बढ़िया. अरे क्या हो गया, सब शांत क्यों हो गए एकदम से? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, audible. Yes, so yeah. पक्का समझ में आया नहीं आया ये तो बताओ. आया आया सर समझ। आ आया गया सर. सर। थोड़ा है, थोड़ा हैवी हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ मेरे ख्याल से. नहीं, नहीं सोच सर रहे हेवी थे था। कि हेवी नहीं होगा सर. बट हुआ हुआ नहीं ना? मुझे नहीं. लग रहा है नहीं कि नहीं। तुम्हारा थोड़ा सा हैवी हुआ है हल्का सा, लेकिन कोई बात नहीं. नो नो वो नो। विद टाइम थोड़ा बहुत आपको हैबिट हो जाएगी उस चीज की. मैंने क्या बोला था आपको? अगर मैं आपको हर रोज 10th फ्लोर से कूदाऊं, कुछ टाइम बाद बोलूं भाई जंप फ्रॉम फिफ्थ आदत हो सिक्स जाएगी। फ्लोर, आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी. क्लियर? तो गाइस, कैच यू अप टुमारो सेम टाइम. बाय बाय गाइस, गुड नाइट. यस सर, बाय बाय, गुड नाइट। लिंक कौन भेजेगा? क्या हुआ? लिंक भेजेगा कौन? नेक्स्ट कौन सा? सचिन सर। अच्छा। हम्म।